آپ کو بتائیں عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ گھروں میں خواتین مہمانوں کی خاطر مدارات کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ مہمانوں کی آمد نے عید کو چار چاند لگا دیے۔ بچے بھی عید کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں تو عزیز و اقارب دوست احباب کے ساتھ مل کر عید منانے میں ہی ہیں۔ ہر کوئی دعوتیں اڑانے میں لگا ہوا ہے۔ گھروں میں خواتین مہمانوں کی خاطر مدارت کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیں۔ کسی نے اماں تو کسی نے ساس کی ریسیپی سے فائدہ اٹھایا۔ عزیز رشتہ داروں کے لیے لذیذ پکوانوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ بھائی عید تو عید ہی ہے، بچوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ میرے 11 بچے ہیں اور ان کے بھی بچے ہیں اور سب انہیں کل بہت اچھی طرح عید منائی۔ آج بھی آئے ہوئے ہیں بچے، میرے پوتے نواسے ہیں، پوتی ہیں، پوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے سب جو ہے بہت خوش ہیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہیں سب۔ پہلے صبح ناشتہ بنا لیتے، انڈے روٹی، یہ اس کے بعد پھینیاں ہیں، چھولے وغیرہ ہیں، اس کے بعد میں پھر وہ شیر خورمہ ہے۔ یہ سب چیزیں بنانے کے بعد میں اب کل سب بچے آ گئے، سب آ گئے جمع ہو کے، سب نے کھایا پیا، عیدی دی ایک دوسرے کو۔ اس کے بعد اب کل پھر ان کی دعوت کریں گے تو پھر سب جمع ہوں گے، پھر اللہ گلہ ہوگا۔ آپ کل آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بچے تیار ہوتے ہی بڑوں سے عیدی بٹورنے لگے۔ ہر گھر میں پارٹی کا سما ہے۔ بہت مزہ آیا۔ صبح سے اٹھتے ہی میں نے تیاری شروع کر دی تھی کہ آج تو بھائی عید ہے، اور جو ہے نا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج سیکنڈ ہے اور آج میری برتھ ڈے بھی ہے۔ لڑکے یہ کہ بس دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں۔ کل بھی ہم نے بڑا انجوائے کیا، شوٹس پر گئے، اور آج بھی تیاری ہے دوست وغیرہ بلکہ ویٹ ہی کر رہے ہیں نیچے کھڑے ہوئے، اور بس تھوڑا امی کے ساتھ تھوڑا عید انجوائے کی۔ بچے آئے ہوئے اتنے سارے ماشاءاللہ بہن بھائیوں کے، اور یہ تو سب پیچھے لگے ہوئے عیدی کے، میں نے دے ہی نہیں رہا عیدی۔ دن بھر خوب موج مستیاں کر کے عیدی اڑانے کے بعد بچوں نے بھی گھر کی راہ لی۔ ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ہم نے جھولے، چیز کھائی، آئس کریم، جوس، بہت مزہ آیا، بہت سارا کھیلا۔ میٹھی عید خوشیاں سمیٹے جلوہ گر ہے۔ گھروں میں دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جب تک سب مل کر ایک نہ ہو جائیں عید منانے کا مزہ نہیں رہتا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ ہادیہ ناز، سٹی 21۔ کرونا وبا اور لاک ڈاؤن کے 2 سال بعد عید کے موقع پر شہر قائد میں عید میلے سج گئے، جہاں بچے عید کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ رنگ برنگے ملبوسات میں سجے دھجے بچے جھولے، گھڑسواری اور آئس کریم کے مزے لے رہے ہیں۔ بچہ پارٹی کا عید منانے کا انداز ہی اپنا ہے۔ بڑوں سے عیدی لینے کے بعد گلی محلوں میں سجے چھوٹے میلوں میں پہنچ گئے۔ رنگ برنگے ملبوسات زیب تن کیے بچے جھولوں میں بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں۔ ٹھیلوں سے برگر اور آئس کریم کھا کر بھی عیدی اڑائی جا رہی ہے۔ ابھی تو جھولے آئی ہوں۔ کون سے جھولے ہیں؟ سارے جھولوں گی۔ ابھی تو ہمارے پاس اتنی سی عیدی ہے۔ اور ابھی یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جھولا کون سا؟ یہ والا۔ کچھ بچے مصروف ہیں اونٹ اور تانگے کی سواری کرنے میں، جبکہ کہیں آئس کریم اور گول گپے کھائے جا رہے ہیں۔ کیمرامین شادب رضا کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ عید کے دوسرے روز کو بھی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے شہریوں نے رخ کر لیا ہے تفریحی مقامات کا۔ 2 دریا کے ساحل پر منچروں نے موج مستیاں کی اور سیلفیاں لے کر زندگی کے لمحات کو یادگار بنایا۔ عید ہو اور سیر سپاٹا نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ عید کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے رخ کر لیا تفریح مقامات کا۔ 2 دریا کے حسین ساحل جہاں گرم موسم میں وہاں سمندری ہواؤں نے استقبال کیا، تو وہیں ٹھاٹے مارتے سمندری لہروں کی اٹکھیلیوں سے شہری خوب محظوظ ہوئے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، اور بچوں کی عید کی چھٹیاں تھی تو اس انجوائمنٹ کے لیے اتنے دور آئے ہم لوگ وہاں سے، تو دیکھیں بچے انجوائے تو کر رہے ہیں بھی۔ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ، ڈر تو لگ رہا ہے لیکن پھر بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت اچھا دن گزر رہا ہے۔ عید بھی بہت اچھا ہے اور رمضان بھی بہت اچھا گزرا ہے۔ 2 دریا پہ آئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسرے دن، پہلا دن اپنے محلے میں تھا اور آج ادھر آئے ہیں، بہت خوش ہے۔ گرمی لگ رہا ہے لیکن اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کی فکر کیے بغیر سمندر میں نہاتے رہے۔ منچرے نوجوانوں کے عید کے دوسرے روز کو یادگار منانے کے لیے خوب سیلفیاں بھی لی۔ کیمرامین عمران AK کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ مچھلی کے شکار کے شوقین افراد نے عید کا دوسرا روز اپنے شوق کی نظر کر دیا۔ عید کی چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مچھلی کے شکار کے شوقین افراد نے سمندر کا رخ کر لیا۔ عید کے روز مچھلی کے شکار کے شوقین افراد سمندر کنارے پہنچ گئے۔ کسی کا شکار لگا تو کوئی سمندر میں ڈور ڈال کر گھنٹوں شکار لگنے کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ شکاریوں کے مطابق 2 دریا کے مقام پر زیادہ تر دندیا، گھیسر، پاپلیٹ اور ہیرا مچھلی لگتی ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے، دندیا ہے پکڑا ہوا ہے میں نے، پاپلیٹ بھی آتی ہیں اور دندیا بھی آتا ہے۔
शिकारी कहते हैं ईद के दिन वो फैमिली के साथ आए हैं, फैमिली अलग एंजॉय कर रही है और वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ये कि थोड़ा तफरी हो जाती है, बच्चों के साथ आया हुआ मैं, बच्चों ने कहा है कि थोड़ा सा घुमा के लिए आए, तो इसलिए थोड़ा सा घूमने पिकनिक बनाने के चक्कर में आए हम लोग। कांटे में मछली लग जाए तो खुशी की इंतहा नहीं, वरना घंटों शिकार लगने का इंतजार मायूसी में तब्दील हो जाता है। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ईद उल फितर के दूसरे दिन भी ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं, जिनका कहना है कि अपनों से दूर रहकर ईद गुजारना मुश्किल तरीन काम है, मगर पहले अवाम और इनकी खिदमत अव्वलीन तरजीह है। ट्रैफिक पुलिस के जवान सख्त गर्मी और धूप में सड़कों पर ड्यूटियां देने में मसरूफ अमल हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार का कहना था कि ईद के मौके पर घर वालों से दूर रहना मुश्किल होता है, मगर आवाम की खिदमत भी जरूरी है। भाईजान नौकरी है, नौकरी का हिस्सा है, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को समझाना, लोगों को ब्रीफ करना बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश करते हैं जवानों के साथ मिल के ट्रैफिक को अच्छी तरीके से चला सकें और इसको रेगुलेट कर सकें। ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर का मजीद कहना था कि ईद पर घर वालों की बहुत याद आती है, मगर फराइज सर अंजाम देना भी जरूरी है। सब बिल्कुल याद आ रही है, लेकिन नौकरी पहले, घर वाले बाद में, पहले नौकरी है, जवानों के साथ लगे हुए। सख्त गर्मी और चिलचिलाती धूप में ड्यूटी निभाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा, जुनैद फिरोज, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस कराची में सीनियर अफसरान, डिप्लोमेट्स और पार्टी कारकुनान से ईद मिले और इन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला से ईद मिलने वालों में चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG मुश्ताक मेहर, सूबाई सेक्रेटरीज बहरीन और टर्की के कौंसल जनरल्स भी शामिल थे। वज़ीर आला सिंध से सूबाई वज़रा सैयद गनी, साजिद जोखियो, ज्ञान चंद और पार्टी के दीगर ओहदेदार भी ईद मिले। वज़ीर आला सिंध ने ईद मिलने वाले मेहमानों की तवाज़ा शीर खुरमा, मिठाइयों और चाय कॉफ़ी से की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध पार्टी ओहदेदारों से घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MQM पाकिस्तान के कन्वेनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और MQM पाकिस्तान के कारकुनान को ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्लाह ताला ईद की खुशियों के साथ आम पाकिस्तानी की जिंदगी में खुशहाली लाए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उम्मीद का इजहार किया कि अगली ईद पर इनके गुमशुदा कारकुनान अपने अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे। तर्जुमान MQM के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुश्किलात से निकालना है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। इमरान खान बारूदी सुरंगे बिछा गए, वो जवाब दें कि इतनी महंगाई और करप्शन छोड़कर क्यों गए। आपको बता रहे हैं वफाक की वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल बरस पड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ऐसे भाषण दे रहे हैं जो 4 साल इनको नहीं पता था। साबिक वज़ीर आज़म कहते थे वो टमाटर की कीमत देखने नहीं आए, IMF से ऐसे वादे कर गए जो पूरे करना मुमकिन ना था। साबिका हुकूमत के जाते ही चीनी सस्ती होना शुरू हुई। इनका मजीद कहना था कि ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिससे स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मुतासर हो। कराची में ईद पर भी पानी की किल्लत खत्म न की जा सकी। FB एरिया ब्लॉक 5 रहमानाबाद की मकीन सड़कों पर आ गए। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक। इलाका मकीनों का कहना था कि इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। ईद के दिनों में भी पानी नहीं मिला। रहमानाबाद में पानी की किल्लत का नोटिस लिया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर के 3 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने मजीद तोसी ना देने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने नए गवर्नर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया।
हुकूमत ने नए गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीरी के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। मौजूदा गवर्नर रजा बाकिर के ओहदे में हुकूमत ने मजीद तोसी न देने का फैसला कर लिया। रजा बाकिर के बाद एशियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर ब्यूरोक्रेट नूर अहमद का नाम अगले गवर्नर स्टेट बैंक के लिए जेर गर्दिश है। इनके अलावा हबीब बैंक के सदर मोहम्मद औरंगजेब आसिम मेराज हुसैन का नाम भी मुजव्वजा फहरिस्त में शामिल है। दूसरी जानिब ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर रजा बाकिर ने जारी पैगाम में कहा है कि इस सिलसिले में हौसला अफजाई करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी गवर्नर्स और स्टेट बैंक टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुलशन इकबाल के इलाके 13D2 में कैंसर से जंग लड़ती हुई फौजिया बीबी के हाथों की बनाई बिरयानी की धूम मची हुई है। दूर दूर से लोग इनके ऑर्डर्स के जरिए मुख्तलिफ खाने भी बनवाते हैं। हिम्मत और जुर्रत की आला मिसाल, कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी की बिरयानी की हर तरफ धूम। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बाहिम्मत खातून फौजिया बीबी कोरोना में शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद बाहर की भी जिम्मेदारी खूब निभा रही हैं। इब्तिदा में उन्होंने ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया और पजीराई मिलने पर अपने फ्लैट के नीचे फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया। ये अच्छी तरह याद है, आप आए थे 24 चैनल से, पहला मेरा इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत से मीडिया के लोग हमारे पास आए और सोशल मीडिया से भी लोग आए, तो उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा मामास कुजीन को जी पब्लिसिटी मिली है। अपनी बीमारी से मुतालिक फौजिया बीबी ने कहा कि इलाज जारी है, फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। ट्रीटमेंट चल रहा है अपना, मेरा आप लोगों को पता है कि कैंसर का इशू था मुझे, तो ये है कि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, साल में जाती हूँ ट्रीटमेंट उसके लिए, अपने फॉलो अप के लिए। फौजिया खातून के हाथों से बनाई गई बिरयानी इंतहाई लजीज होती है। दूर दराज इलाकों से भी लोग खाने के अलावा ऑर्डर पर भी मंगवाते हैं। माशाल्लाह इनकी बिरयानी जो है ना, मैं अमूमन इधर आकर खाता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, इनका घर का जायका है। कैंसर से जंग लड़ने के साथ साथ फौजिया खातून अब हालात का भी मुकाबला कर रही हैं, जिसमें इनका शौहर खालिद और 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रजा अस्फानी, सिटी 21। कराची में बर्ड्स गार्डन के करीब शाहराह कमाल अतातुर्क पर रोड पर वाक़या कौमी अजायब घर जो विफाक के कंट्रोल में है, इसकी तशहीर के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अवाम की अक्सरियत लाइल्म है कि कौमी अजायब घर कहाँ वाक़या है। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कायद को नज़रअंदाज करने का सिलसिला वैसे तो हर शोबे में किया जा रहा है, लेकिन सकाफती मैदान में कौमी हो या सूबाई हुकूमतें दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम दिखाई दी। नेशनल म्यूजियम में करोड़ों रुपए मालियत के हजारों नवादरात रखे हुए हैं, लेकिन इसकी तशहीर जीरो है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कौमी अजायब घर जाने वाली किसी भी सड़क पर नेशनल म्यूजियम का एक भी निशान या साइन बोर्ड नस्ब नहीं। तहम जब इससे मुतालिक माहिर आसार कदीमा व नवादरात जुबैर अहमद मदनी से बात की गई तो उनका कहना था कि माजी में कौमी अजायब घर की तशहीर होती रही है और अब भी इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। माजी में बिल्कुल ऐसा था, नेशनल म्यूज़ियम के बोर्ड जो है कराची एयरपोर्ट से लेके और कराची रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल म्यूज़ियम तक जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, बड़े बोर्ड थे जिन पे बताया गया था कि नेशनल म्यूज़ियम किस समत है, कैसे आपको जाना है। इसके अलावा उसके कुछ फ़ीचर्स भी उसके ऊपर दिखाए गए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि हर पोर्ट ऑफ एंट्री पे या हर उस मकाम पे जहाँ से सयाह खुसूसन शहर में दाखिल होते हैं, हर ऐसी जगह पे नेशनल म्यूजियम की तशहीर के लिए बोर्ड होना चाहिए। दुनिया भर में अजायब घरों के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन लावारिस कराची को इसमें भी नजरअंदाज किया गया। ताहम इस हवाले से जुबैर अहमद मदनी का दावा है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में दाखिले पर म्यूजियम के बारे में मालूमात भी फराहम की जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है और ज़रूर होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा न्यूयॉर्क की। मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क एक बड़ा मशहूर म्यूज़ियम, दुनिया का बड़े म्यूज़ियम्स में से एक है। मैं जिस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा JFK पे, तो वहाँ पे पहले से डेस्क मौजूद थी और उस वक्त वहाँ होने वाली एग्ज़िबिशन का भी जिक्र मौजूद था, उसका रास्ता भी बताया गया था, म्यूज़ियम के औकात भी सारे बताए गए हैं, म्यूज़ियम की समझ बताई गई है, किस दिन बंद होता है, किस दिन जो है वो खुला होता है, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। कौमी अजायब घर की एक वेबसाइट जरूर मौजूद है, लेकिन वो भी वफाकी हुकूमत की नहीं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी ऑफिशियल नहीं है और कोई ऐप नहीं जो आवाम में आगाही फराहम करे। कौमी अजायब घर किसी भी मुल्क की सखावत का अहम सतून होते हैं, लेकिन रोशनियों के शहर में इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। वक्त की ज़रूरत है कि इसकी तशहीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा अस्फहानी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक ऐसे चना चाट वाले भी मौजूद हैं जो एक ही जगह पर 50 साल से ज़ायद अरसे से
चने फरोख्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि करीबी क्रिकेट ग्राउंड बख्तियारी यूथ सेंटर पर खेलने वाला शाहिद अफरीदी भी माजी में इनके पास चने खा चुके हैं। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर ठेला लगाने वाला उमर रहमान गुज़िश्ता 51 बरसों से एक ही जगह चना चाट बेच रहा है। उसके ग्राहकों में बोर्ड ऑफिस आने वाले तलबा और बख्तियारी यूथ सेंटर में खेलने के लिए आने वाले क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद शामिल है। सिटी 21 से बात करते हुए उमर रहमान ने बताया कि उसने 8 आने और 1 रुपए से फी प्लेट बेचना शुरू की थी और अब एक प्लेट 80 रुपए तक पहुँच गई है। उस टाइम पे प्लेट 8 आने रुपए 2 रुपए से ऊपर का प्लेट, 1.5 रुपए से ऊपर का प्लेट नहीं था। अब जो है ना 80 रुपए का प्लेट देना पड़ता है, तो वो भी रोना पड़ता है। हर प्लेट के साथ रोता हूँ। उमर रहमान ने कहा कि उनके ग्राहकों में शाहिद अफरीदी भी शामिल हैं, जो उनकी चना चाट खाते थे। ये बोर्ड का आगे में खड़ा होता था, ये अफरीदी, ये दूसरा जितना भी है ये सारे यही खेलता था, अब इधर आता था। चना चाट खाने वाले अफराद ने भी जायके की तारीफ की। मैं इधर 4-5 साल से आ रहा हूँ, मेरा के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक़ है, तो मैं इधर चाट खाता हूँ तो बहुत अच्छी चाट है माशाल्लाह। मैट्रिक से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो चाचू के पास खाता रहता हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है, जायका है और मज़े की होती है। यहाँ आते हैं, जब भी आते हैं यहाँ खा के जाते हैं यहाँ से। मेहनत और लगन जिस काम में शामिल हो वो कारोबार हमेशा जारी रहता है। उमर रहमान का चना चाट का ठेला इसकी मिसाल है। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में एक कश्मीरी फालूदे वाले के चर्चे हैं। इंतहाई कम पैसों में मज़ेदार फालूदा गुज़िश्ता 40 साल से फरोख्त किया जा रहा है। सर्दियों में यखनी और सूप और गर्मियों में कश्मीरी फालूदा FB एरिया ब्लॉक 17 में गुज़िश्ता 40 बरस से फरोख्त हो रहा है। आवाम में मकबूल फालूदा के एक गिलास की कीमत 40 और 60 रुपए मुकर्रर है। फालूदा वाले ने बताया कि इसमें बर्फ, शरबत और दूध के अलावा सवैयाँ, करीम और तुख़्म मलंगा शामिल किया जाता है। इसमें हम सवैयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। दूध अपना होता है जिसमें क्रीम कुमेल मिक्स होता है, और फालूदा होता है उसमें क्रीम पाउडर मिक्स होता है। इस वजह से उसका टेस्ट अलग होता है। तुकमलंगा होता है, बर्फ़, रूअफ़ज़ा अपना बना हुआ होता है हमारा, तो वो जब बनता है तो उसका टेस्ट अलग मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए माशाल्लाह थोड़ा सा मशहूर है और काफ़ी दूर दूर से भी कस्टमर वगैरह आते हैं। फालूदा खाने वाले ग्राहकों का कहना था कि इतनी कम कीमत में मज़ेदार फालूदा हमने कहीं नहीं खाया। मैं तकरीबन रोज़ाना ही आता हूँ, अगर अच्छा है तो इसीलिए आता हूँ रोज़ाना। अच्छा क्रीम डली हुई है, फालूदा डला हुआ है, बहुत उम्दा है, अच्छी क्वालिटी है। जिला वस्ती के गुंजान आबाद इलाके में मीठे मजेदार फालूदा गर्मियों की बेहतरीन सौगात है। मामूली कीमत ने हर आम इंसान के लिए भी इसका हसूल आसान बना दिया है। कैमरामैन अहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। कराची में सी व्यू पर आवाम की बड़ी तादाद मौज करने पहुंच गई है और साहिल पर मौजों से लुत्फ अंदोज हो रही है। आपको बता रहे हैं कराची में सी व्यू पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और साहिल पर मौजों से लुत्फ अंदोज हो रही है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में आवाम सी व्यू पर पहुंची है? जी, ईद हो, आप कराची में हो और समंदर में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहिल पर मौजों से लफ्ज़ अंदोज़ होने हज़ारों की तादाद में आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। सुबह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इस वक्त रात गए तक ईद के दिनों पे यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब हम यहाँ पे सी व्यू आ रहे थे तो हमें शदीद ट्रैफिक जाम मिला क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही थी। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, समंदर पे मौजूद हैं, साहिल पर मौजूद हैं, घोड़े की सवारी कर रहे हैं, ऊँट की सवारी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कार की सवारी भी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। रात गए थे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा वाजिद, बताइएगा कितनी फैमिलीज इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों का कैसा जोश व जज्बा आप देख रहे हैं? बच्चे बहुत खुश हैं, ज़ाहिर है अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, छुट्टी का दिन है, ईद का दिन है, खूब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी ईदी खर्च कर रहे हैं। हमने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि जितनी हमें ईदी मिली थी वो आज हमने समंदर पर आके खर्च कर दी। ये सी व्यू का जो साहिल है वो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होता है। इसका यहाँ पे बुलंदोबाला बिल्डिंग्स हैं, वसीओरीज बेंगलोज हैं, फ्लैट्स का एक जाल है, बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बच्चे बहुत खुश थे, यहाँ पे घुड़सवारी कर रहे थे, ऊँट की सवारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाए, बिरयानी खाई, सारी चीज़ें उन्होंने एंजॉयमेंट करने के बारे में हमें बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद रज़ा इस्फहानी अपडेट करने।
ईद उल फितर का दूसरा रोज सैर व तफरीक के बाद शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। बच्चों, बड़ों और फैमिली सब गर्म मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रही हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदा इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद के पहले रोज़ भी लोगों की बड़ी तादाद खाने पीने के लिए बाहर निकली थी और आज क्योंकि ईद का दूसरा रोज़ है, आज भी कराची के जो शहरी हैं वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे लोग बाहर निकलते हैं। अमूमन 7 और 8 बजे के बाद जो है वो हम देखते हैं कि जो आइसक्रीम पार्लर हैं वहाँ लोगों का रश होता है, बिरयानी सेंटर पर भी लोगों का रश होता है, इसी तरीके से जो बारबेक्यूज़ हैं वहाँ पर भी लोगों का रश होता है। इस वक्त हम यूपी आइसक्रीम फालूदा जो यहाँ पर है, इधर हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ भी इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आइसक्रीम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। मेरे साथ कुछ लोग इनसे बात करेंगे। आप यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए आए, बताइएगा ईद का आज दूसरा रोज़ है, कराची वाले अमूमन जो है वो कैसा एंजॉय करते हैं ईद पर? ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय करते हैं और ईद का और पहला दिन तो थोड़ा स्लो होता है, थके हुए होते हैं लोग, लेकिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय चलता है। फिर तीसरे दिन तकरीबन 1 वीक तक तो ईद बनाई जाती है बहुत धूमधाम से माशाल्लाह। कि पाकिस्तान के अंदर जैसी ईद बनाई जाती है ऐसी ईद जो है वर्ल्ड में कहीं और नहीं बनाई जाती, और कराची में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंतजाम रहते हैं इन चीज़ों के। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि कराची के जो लोग हैं वो भी खाने पीने में किसी से कम नहीं है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोग घरों से निकलते हैं। और आज भी ईद के दूसरे रोज़ भी ना सिर्फ बिरयानी सेंटर बल्कि जो बहुत शुक्रिया इरफान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।